اب بچوں ہم بات کرتے ہیں کولین کہ کولین کیا چیز ہے نا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے انٹرسٹ پوائنٹ آف ویو سے. کولین کو سب سے پہلے میں نے آپ کی اس کی ڈیفینیشن بورڈ پہ لکھی ہے. میں نے اس میں لکھا ہے انٹریکشن بٹوین ٹو باڈیز، یعنی ٹو باڈیز کا جو آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے اسی انٹریکشن کو ہم لوگ کولین کہتے ہیں. اب بہت سارے بچوں کے مائنڈ میں کولین کے بارے میں یہی کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ سپوز کریں ایک باڈی ہے، اس کی ماس m1 ہے، یہ موو کر رہی ہے، اور یہ جب یہ کسی دوسرے باڈی سپوز کرتے ہیں اس کی ماس m2 ہے، اس کے اوپر جب جا کر ہٹ کرے گی تبھی ہی کولین ہوگا. یعنی وہ اس انٹریکشن کو ہمیشہ ہٹ کرنے کے سینس میں ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ بات رانگ تو نہیں، بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تھوڑی سی چارجز کے لیے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یعنی چارجز کے لیے اس بات کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو چارجز کے لیے میں نے ایک اور بات لکھی ہے. ایک تو بات یہ ہوگی کہ کولین ہے کیا، انٹریکشن بٹوین ٹو باڈیز کا ہم کولین کا نام دیتے ہیں. اب میں نے ایک بات لکھی فزیکل کانٹیکٹ کی، تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر تو اس کے اوپر ہٹ ہو رہا ہے، ہٹ ہونے کا مطلب فزیکل کانٹیکٹ ہو رہا ہے، جس کو ہم کولین بول رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کے لیے چارجز کے بارے میں لکھا ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ از ناٹ نیسیسری ان کیس آف چارجز. یعنی اگر ہم چارجز کی بات کریں تو چارجز کے کیس میں فزیکل کانٹیکٹ نیسیسری نہیں بھی ہوتا. فار ایگزامپل یہ سپوز کر لیں کہ ایک نیوکلس ہے اور ہم اس کے اوپر الفا پارٹیکل کی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے 9th سینس میں بات سنی بھی ہوئی ہے. جب ہم الفا پارٹیکل کو موو کروائیں گے ٹورڈز اے ہیوی نیوکلس تو کیا ہوگا کہ اس نیوکلس کے راؤنڈ اس کا اپنا اسٹرانگ الیکٹرک فیلڈ ہے. اس الیکٹرک فیلڈ کی ریپلشن کی وجہ سے بہت سارے الفا پارٹیکل یہاں سے بینڈ ہو جائیں گے. یعنی وہ الفا پارٹیکل آ کر فزیکلی نیوکلس کے اوپر ہٹ نہیں کر رہے، بلکہ بہت سارے الفا پارٹیکل وداؤٹ ہیٹنگ ہی کیا ہو رہے ہیں، بینڈ ہو رہے ہیں. اگر کسی بھی کیس میں کسی پارٹیکل کا پاتھ آف موشن جو ہے وہ اٹریکشن یا ریپلشن کی وجہ سے کیا ہو جائے، چینج ہو جائے، تو اس کو بھی ہم نام کس کا دیتے ہیں، کولین کا ہی نام دیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ انٹریکشن جو ہوتی ہے اس میں فزیکل کانٹیکٹ اگر نہ بھی ہو تو تب بھی ہم اس کو کولین ہی کنسیڈر کریں گے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ڈیورنگ دیئر موشن ان کے پاتھ آف موشن اٹریکشن یا ریپلشن کی وجہ سے کیا ہو رہے ہوں، چینج ہو رہے ہوں. چارجز والی بات میں نے اس لیے لکھی ہے کہ یہ والا فینامنا ہم پرومیننٹ آبزرو کرتے ہیں چارجز کے اندر. جس طرح الفا پارٹیکل کو جب ہم ہیوی نیوکلس کی طرف بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو بہت سارے الفا پارٹیکل نیوکلس کے اوپر سٹرائک کیے بنا ہی اپنے پاتھ کو بینڈ کر لیتے ہیں ڈیو ٹو ریپلشن آف اٹس الیکٹرک فیلڈ. تو یہ بات کلیئر کر لینی ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ یوزلی نیسیسری نہیں ہوتا. لیکن اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر فزیکل کانٹیکٹ ہوگا تو اسے کولین نہیں بولیں گے، پھر بھی اسے کیا کہیں گے، کولین ہی کہیں گے. لیکن وداؤٹ فزیکل کانٹیکٹ جس طرح یہاں پر پاتھ آف موشن چینج ہو رہا ہے، اگر ایسے پاتھ آف موشن چینج ہو جائے تو اسے بھی ہم کولین ہی کنسیڈر کریں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی ڈائیگرام MCQs میں آ جاتی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس کو کولین کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے، تو آپ لوگوں نے یس میں آنسر چوز کرنا ہے کہ اس کو بھی ہم کولین کنسیڈر کریں گے. یہ کنسیپٹ آپ لوگوں نے اب مائنڈ میں رکھنا ہے. اب بچے چلتے ہیں کولین کی ٹائپس کے اوپر. بہت آسان سی بات ہے. کولین کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہم الاسٹک کولین بولتے ہیں، ایک ہم ان الاسٹک کولین کہتے ہیں. الاسٹک کولین کے اندر 3 مین لاز جو ہوتے ہیں وہ کنزرو رہتے ہیں. ایک کائنیٹک انرجی کنزرو ہوتی ہے، ایک مومنٹم بھی کنزرو رہتا ہے، اور ET مین ٹوٹل انرجی بھی کنزرو رہتی ہے. ایسے کولین کو ہم الاسٹک کولین کہتے ہیں. اور الاسٹک کولین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نو ساؤنڈ اینڈ ہیٹ پروڈیوس. یعنی الاسٹک کولین ایک ایسا کولین ہے جس میں جب باڈیز کولائڈ کرتے ہیں نہ تو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے نہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل میں نے لکھا ہے کولین بٹوین گیس مالیکیولس، یا آئیڈیل گیس مالیکیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیس کے مالیکیولس ذرا امیجن کرو نا، جب کولائڈ کرتے ہیں تو ان کی کولین سے جو ہیٹ یا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ نیگلیجبل ہوتی ہے، ہم اسے نگلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بات میں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں اگر گیس کے مالیکیولس کولائڈ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے نہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے نہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح کے انرجی کا کوئی لاس نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ تینوں لاس کنزرو رہیں گے. بس یہ آپ لوگوں نے MCQs کے لیے بات یاد رکھنی ہے. اگر آتا ہے کہ ان الاسٹک کولین میں کون سا لاس کنزرو رہتے ہیں تو لا آف کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی، مومنٹم اینڈ ٹوٹل انرجی آل آر کنزروڈ. لیکن بچے جب ہم ان الاسٹک کولین کی بات کرتے ہیں تو بس ایک ڈفرینس آتا ہے یہ والا، اس الاسٹک کولین میں کائنیٹک انرجی کنزرو ہے، لیکن ان الاسٹک کولین میں یاد رکھنا ہے کائنیٹک انرجی کنزرو نہیں ہے. ایک بات امپورٹنٹ،
دوسری بات یہ یاد رکھنی کہ یہ دونوں لاز سیم ہیں، ادھر بھی پی کنزرو ہے مومنٹم، ادھر بھی کنزرو ہے، ادھر بھی ٹوٹل کنزرو ہے، ادھر بھی ٹوٹل کنزرو ہے۔ تو جب ایم سی کیوز آئے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ الاسٹک اور ان الاسٹک میں کنزرو کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، یہ دونوں تو ہمیشہ کنزرو رہیں گے، ایشو صرف کس انرجی کا آئے گا؟ کائنیٹک انرجی کا۔ کائنیٹک انرجی اس الاسٹک میں کنزرو ہوگی، ان الاسٹک میں کائنیٹک انرجی کنزرو نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا بچے اس میں ہم لوگوں نے بولا تھا نو ساؤنڈ اینڈ ہیٹ پروڈیوس، اس میں ہم کہتے ہیں ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوگی اور ہیٹ بھی کیا ہوگی؟ پروڈیوس ہوگی۔ اور اس کی بڑی بیسک سی ایگزامپل میں نے لکھی، کولیجن بٹوین ٹو کارز۔ خود سوچو نا، ٹو کارز اگر آپس میں کولائڈ کرتی ہیں تو جب کارز کولائڈ کریں گی اس سے ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوگی اور اس سے ہیٹ بھی پروڈیوس ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ جب ٹو کارز نے یا کوئی سے ٹو ہیوی باڈیز نے آپس میں کولائڈ کیا ہے تو جو ساؤنڈ اور ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بیسیکلی انرجی کی ہی فارم ہے۔ تو وہ انرجی پھر سسٹم سے نکل کر کچھ اس کا پارٹ کس میں چلا گیا ہے؟ سراؤنڈنگ میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کائنیٹک انرجی کنزرو نہیں رہی۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب کولیجن ہوا ہے تو انرجی کا کچھ پارٹ، ساؤنڈ بھی انرجی ہے، ہیٹ بھی انرجی ہے، تو سسٹم کی انرجی کا کچھ پارٹ کس میں چلا گیا ہے؟ سراؤنڈنگ میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے کائنیٹک انرجی کنزرو نہیں رہی۔ اب بہت سارے بچے اس بات کو یوں سوچتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں کائنیٹک انرجی کا فارمولا تو ہاف ایم وی اسکوئر ہوتا ہے، اس میں بھی ایم اور وی ہے، مومنٹم کا فارمولا بھی تو ایم اور وی ہوتا ہے، اگر یہاں پر کچھ انرجی سراؤنڈنگ میں چلی گئی ہے تو اس میں بھی تو ایم اور وی آتے ہیں، اس میں بھی ایم اور وی آتے ہیں۔ تو جب کائنیٹک انرجی کنزرو نہیں رہی تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم کنزرو ہے؟ کیونکہ دونوں میں ایم اور وی تو سیم آ رہے ہیں۔ تو بچے اس کنسیپٹ کو آپ کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لاز جو ہوتے ہیں، کچھ لاز صرف سسٹم کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اور کچھ لاز سسٹم پلس سراؤنڈنگ دونوں کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو جو کائنیٹک انرجی کا لا ہے، لا آف کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی، وہ پراپرٹی ہے صرف سسٹم کی۔ دیکھیں ٹو کارز ہیں، وہ موو کر رہی ہیں، وہ کار دونوں سسٹم ہے، ان کے پاس انرجی ہے۔ آج جب کولیجن ہوا ہے تو کار کے پاس کچھ انرجی ابھی بھی ہے جو کہ سسٹم کی انرجی ہے، لیکن کچھ انرجی سراؤنڈنگ میں چلی گئی ہے، ساؤنڈ اور ہیٹ کی فارم میں یوزلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹم کی انرجی کنزرو نہیں رہی، اور سسٹم کے اوپر جو لا اپلائی ہوتا ہے وہ کائنیٹک انرجی ہے۔ تو جب ٹو کارز کا کولیجن ہوا تو سسٹم کی انرجی سراؤنڈنگ میں چلی گئی، تو ہم لوگوں نے کہا کائنیٹک انرجی کنزرو تو نہیں رہی، لیکن جب اسی کولیجن کے اوپر مومنٹم اپلائی کریں گے، یعنی لا آف کنزرویشن مومنٹم اپلائی کریں گے، تو اس وقت وہ دونوں کار یعنی سسٹم کی انرجی اور پلس ہم سراؤنڈنگ کی انرجی کو بھی کاؤنٹ کریں گے، یعنی سراؤنڈنگ کے پاس جو انرجی گئی ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے۔ تو مومنٹم اور ٹوٹل انرجی دونوں کیسز میں اس لیے کنزرو رہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں اور سراؤنڈنگ کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں، لیکن کائنیٹک انرجی جو ہے وہ صرف لا کس چیز کا ہے؟ سسٹم کا لا ہے۔ بس یہ امید ہے آپ کو کنفیوژن کلیئر ہو چکی ہوگی۔ ایک بہت فیمس تھیورم ہے الاسٹک کولیجن ان ون ڈائمینشن کا، آپ اس کو ایف ایس سی میں پروو بھی کرتے ہیں، آپ کا لانگ کوشچن ہے، میں نے اس کی فائنل اسٹیٹمنٹ لکھ سی ہے، میں نے لکھ سی ہے کہ یہ تھیورم یہ ہے کہ اسپیڈ آف اپروچ ایکول ٹو ہوگی اسپیڈ آف سیپریشن کے۔ یہ صرف اپلائی ہوگا جب الاسٹک کولیجن ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ون ڈائمینشن میں ہوگا۔ ایک بات ہوگی اسپیڈ آف سیپریشن کے لیے لوگ ورڈ اسپیڈ آف ریسیشن بھی یوز کرتے ہیں، یعنی اسپیڈ آف سیپریشن بھی سے کہتے ہیں، اسپیڈ آف ریسیشن بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ٹو باڈیز ہیں، ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کی ماسز سپوز کر لیتے ہیں آپس میں سیم ہے، m1 ایکول ٹو m2 ہے، اور یہ جو پہلا باڈی ہے اس کی سپیڈ 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، دوسرے باڈی کی سپیڈ 3 میٹر پر سیکنڈ کر لیتے ہیں، تو v1 گریٹر ہے v2 سے، تو کچھ ٹائم t کر لیتے ہیں، اس کے بعد v1 جا کر v2 کے ساتھ کولائڈ کر گئے ہیں جس طرح نیچے شو ہو رہا ہے۔ اب کولیجن کے بعد پھر دونوں موو کر رہے ہیں، اگر بچوں ان دونوں کی ماسز ایکول ہوں، جو کہ ابھی ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، تو الاسٹک کولیجن میں یہ دونوں باڈیز اپنی ویلاسٹیز کو انٹرچینج کر لیتے ہیں۔ اگر ماسز ایکول ہوں تو ویلاسٹی ٹوٹلی کیا ہو جائیں گی؟ انٹرچینج ہو جائیں گی۔ تو انٹرچینج کا مطلب کیا ہے؟ جس کی 10 تھی اس کی کیا ہو جائے گی؟ پھر 3 ہو جائے گی، اور جس کی 3 تھی اس کی بچوں 10 ہو جائے گی۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس تھیورم کا مطلب کیا ہے۔ v1 مائنس v2 کو ہم لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسپیڈ آف اپروچ۔ جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیز کیا ہے، تو دیکھیں اس کو اسپیڈ آف اپروچ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ اس میں سے 10 میں سے 3 کو مائنس کرتے ہیں تو 10 مائنس 3 آپ کا کتنا بن گیا؟ 7 کی ایکول ہو گیا نا۔ اس کو مطلب کہ فرسٹ باڈی سیکنڈ باڈی کو اپروچ کر رہا ہے کس سپیڈ سے؟ 7 میٹر پر سیکنڈ سے۔ اب ذرا ادھر دیکھیں، ادھر اگر آپ v2 میں سے v1 کو مائنس کریں، v2 کتنا ہے؟ 10،
-3, तो वो आंसर भी कितना आ रहा है 7। इस केस में v1 ज़्यादा है v2 से, तो v1 v2 को इस 7 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। लेकिन इस केस में v2 ज़्यादा है किससे, v1 से, तो अब इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन तो कम हो रही है, क्योंकि इसके करीब जा रहा है और कुछ देर के बाद कोलिजन होगा। इस केस में क्या हो रहा है, सेकंड बॉडी की स्पीड ज़्यादा है फर्स्ट बॉडी से, तब जो टाइम गुजरेगा इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन इंक्रीज़ करेगी। और अगर वो हम लोगों ने कैलकुलेट की है, वो भी कितनी आई है, 7 मीटर पर सेकंड। इस एग्जांपल में 7 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, अगर वो 7 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ अप्रोच है, तो इस बात का मतलब ये है कि हर एक सेकंड के अंदर ये वाला बॉडी इस बॉडी के 7 मीटर क्लोज हो रहा है। ये 7 मीटर पर सेकंड मीन हर सेकंड में 7 मीटर क्लोज हो रहा है। और स्पीड ऑफ सेपरेशन में 7 का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से 7 मीटर अवे जा रहा है। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। ये तो जैसे आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करना था बच्चे। इसके एक तो एमसीक्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो थ्योरम है इसमें इक्वालिटी कब आएगी, जब इलास्टिक कोलिजन होगा इन 1 डायमेंशन में। अब एमसीक्यूज़ किस तरह के आएंगे, सम टाइम बच्चे ये होगा आपसे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ अप्रोच पूछी गई होगी, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है, और उस क्वेश्चन में आपको v2 प्राइम की, इनको प्राइम कर लेना, v2 प्राइम की और v1 प्राइम की वैल्यूज गिवन होंगी। यानी वो पूछेगा आपसे स्पीड ऑफ अप्रोच, लेकिन आपको क्वेश्चन में v2 प्राइम और v1 प्राइम की वैल्यू यानी आफ्टर कोलिजन वैल्यूज गिवन होंगी। तो बड़ी आसान सी बात है, हमें पता होता है स्पीड ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला v1 माइनस v2 होता है। लेकिन अगर हमें v1 माइनस v2 नहीं गिवन, v2 प्राइम और v1 प्राइम गिवन है, तो ये भी हमें पता है कि दरमियान में कौन सा साइन आता है, इक्वालिटी का आता है। तो अगर स्पीड ऑफ अप्रोच पूछते हैं और ये वाला डाटा गिवन हो, तो इस डाटा की मदद से भी आप क्या निकालोगे, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम निकालोगे। तो जो इसका आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ अप्रोच के इक्वल होगा। ये थोड़ी सी वो चेंज करता है। या कभी कभार बच्चों आपसे ये पूछ लेता है, स्पीड ऑफ सेपरेशन पूछ लेता है, और आपको v2 प्राइम और v1 प्राइम की बजाय v1 और v2 गिवन होते हैं, तो फिर भी आप उनको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। या इस इक्वेशन में अब देखिए आपका 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4। अगर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में से आपको इनमें से कोई एक आपसे अननोन कर दे और बाकी आपको कोई से 3 गिवन हो, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके उस अननोन को भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं आपको मेरी एमसीक्यूज़ की बुक में वो सारों की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। बस इन आइडियाज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों हम कोलिजन का वो पोर्शन डिस्कस करते हैं जिसके ज़्यादातर इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। पहला जो पोर्शन अभी मैंने आपको डिस्कस किया है उसके वर्ड प्रॉब्लम यूजुअली आते हैं, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो मैंने इसके जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं आपकी आसानी के लिए उसको 2 डिफरेंट केसेस में डिवाइड किया है। वो केसेस किस तरह के हैं उनको देखते हैं। पहला केस बच्चे मैंने इस तरह लिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये हिंट गिवन हो, यानी आप लोगों ने किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी और उस स्टेटमेंट में आपको ये हिंट गिवन है कि जो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रहे हैं उन बॉडीज़ की मासेस सेम है। यानी क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और उस स्टेटमेंट में किसी जगह आपको ये वर्ड हिंट मिल गया कि वो जो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रहे हैं उन बॉडीज़ की मासेस आपस में सेम है। आपके क्वेश्चन आते क्या हैं इसमें ना, आपके क्वेश्चन सिंपली आते हैं कि बॉडीज़ हैं वो मूव कर रहे होते हैं, बिफोर कोलिजन उनकी मासेस और स्पीड गिवन होती हैं, बिफोर कोलिजन उनकी मासेस और स्पीड गिवन होती हैं, और आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड पूछी गई होती है। यानी बिफोर कोलिजन स्पीड गिवन होती है और आफ्टर कोलिजन स्पीड पूछी होती है। इधर है मास तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हम सेम ही लेते हैं। तब हमने आंसर क्वेश्चन का कैसे करना है, एक तो इसका है कि हम प्रॉपर फार्मूला यूज़ करके करें, तो प्रॉपर फार्मूला से क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका आसान हल जो मैंने अभी रिपीट किया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये हिंट गिवन हो कि बॉडीज़ की क्या सेम है, मासेस सेम है, जिस तरह पहला हिंट मैंने लिखा है बोर्ड पे केस 1 में, हिंट मीन क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा कि इस मेथड से उसको सॉल्व करना है। हिंट ये है कि व्हेन 2 बॉडीज़ हैव इक्वल मासेस, अगर 2 बॉडीज़ की इक्वल मासेस हों, तो मैंने आपको बताया हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, उन कोलाइडिंग बॉडीज़ की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पूछी जाती है। तो इसका शॉर्टकट आप लोगों ने जो याद रखना है वो ये है, वेलोसिटीज इंटरचेंज। बहुत आसान बात कि सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये चीज़ नज़र आ जाए कि गिवन बॉडीज़ की मासेस सेम है और आप लोगों ने v1 प्राइम और v2 प्राइम बताना है, तो उस क्वेश्चन में उन बॉडीज़ की जो गिवन वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन उनको आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। इस बात को समझने के मैंने आपके लिए 2 एमसीक्यूज़ भी लिखे हैं, देखते हैं। पहला एमसीक्यू बच्चे ये है
एक बॉडी स्पीड v1 5 मीटर पर सेकंड है और v2 2 मीटर पर सेकंड है, दोनों डायग्राम में मूव कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन दोनों बॉडीज़ की मासेस सेम है, यानी ये हिंट साथ में गिवन है, स्पीड गिवन है और मासेस दोनों की सेम गिवन है। जैसे ही मासेस सेम बच्चों, अब देखो फ़ौरन से आप लोगों ने इस ऑप्शन पे आ जाना है कि दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। अब एमसीक्यूज़ क्या आएगा, एमसीक्यूज़ ये पूछा जाएगा कि इस फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, v2 प्राइम सेकंड बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट सिखाया, वेलोसिटीज़ को बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, जिसकी 5 है उसको 2 से रिप्लेस करें और 2 को फिर किस से 5 से रिप्लेस कर दें, तो इंटरचेंज होगी। तो अब मुझे बच्चों अब लिखवाओ ना ज़रा जल्दी से कि v1 प्राइम जो बनेगी, क्या कोलिजन के बाद v1 प्राइम इस फर्स्ट बॉडी की कोलिजन के बाद वेलोसिटी वो 5 होगी या 2 होगी, बिल्कुल 2 होगी, क्योंकि 5 ने 2 बन जाना है और 2 वाली ने 5 बन जाना है। तो v1 प्राइम कोलिजन के बाद क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड होगी। और अगर आपसे v2 प्राइम पूछता है तो v2 प्राइम जो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बहुत आसान सी बात होगी कि सिंपल आप लोगों ने दोनों की वेलोसिटीज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिए। दोबारा बच्चे एक और क्वेश्चन देखें, एक बॉडी है जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, वो एक सेकंड बॉडी के साथ जाकर कोलाइड कर रहा है, जो कि सेकंड बॉडी की v2 0 होने का मतलब ये है कि सेकंड बॉडी किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। और अगेन आपको सेम हिंट ये गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों बॉडीज़ की मासेस आपस में सेम है, यानी सेम हिंट गिवन है कि दोनों बॉडीज़ की मासेस आपस में क्या है, सेम है। तो अगर मासेस सेम है तो अगेन वेलोसिटीज़ क्या होंगी, इंटरचेंज होंगी। ये नहीं सोचना कि 0 होगा तो 0 कैसे इंटरचेंज होगा, बिल्कुल हो सकता है। आप 3 की जगह 0 लिख देंगे और 0 की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। मीन फर्स्ट बॉडी कोलिजन से पहले 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, जब ये रेस्ट वाले बॉडी के साथ जब कोलाइड करेगी तो इसका 3 किससे रिप्लेस होगा, 0 से रिप्लेस होगा। तो फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अब बच्चों जो सेकंड बॉडी है जो कि रेस्ट में था उसकी फिर कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है आप लोगों के लिए कि सिंपल आप लोगों ने वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज करना है। इस बात की फिजिकल मीनिंग ये है, कोलिजन से पहले जो बॉडी मूव कर रहा था और ये वाला बॉडी रेस्ट में था, तो कोलिजन के बाद मूविंग बॉडी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और जो रेस्ट में था वो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन ये वेलोसिटी इंटरचेंज का कंसेप्ट का हिंट सिर्फ क्या है, अगर क्वेश्चन में ये बात गिवन हो कि जो दोनों मूविंग बॉडीज़ हैं उनकी मासेस आपस में सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसका केस 2 देखते हैं। केस 2 का हिंट मैंने बच्चे ये लिखा हुआ है कि जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड विद लाइट बॉडी, यानी जब मैसिव बॉडी जो है वो लाइट बॉडी के साथ कोलाइड करे, कितनी मैसिव हो। इसका हिंट बच्चे जो मैंने लिखा है इसमें ये याद रखिए कि मैसिव और लाइट के जब वर्ड यूज़ होते हैं इन क्वेश्चन में मासेस आर नॉट गिवन, मासेस आर नॉट गिवन, यानी इसमें इन क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन देखेंगे यूनिवर्सिटी में तो इन क्वेश्चन की मासेस गिवन ही नहीं होंगी। सिर्फ क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ होगा मैसिव बॉडी और लाइट बॉडी। वैसे मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। ये ऐसे केस है, यूँ समझिए कि आपके सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक के ऊपर आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, यानी ट्रक जो है वो मैसिव बॉडी है और जो बॉल आप ले रहे हैं वो एक लाइट बॉडी है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये मासेस वाली बात नहीं गिवन होगी। सिर्फ क्वेश्चन के हिंट ये है कि क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ होगा मैसिव एंड लाइट बॉडी। तो जब ये वर्ड यूज़ हो तो अपने माइंड में लेकर आना है कि ट्रक और बॉल की जो कंपैरिजन है मास का, इस क्वेश्चन में वही कंपैरिजन यूज़ हो रहा है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपके लिए एक और हिंट बड़ा आसान सा लिखा है। वो हिंट बच्चे मैंने ये लिखा है, सवाल क्या होगा, क्वेश्चन वही पुराने वाला है कि मैसिव बॉडी और लाइट बॉडी की आफ्टर कोलिजन आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी। बिफोर कोलिजन तो गिवन होगी, आपसे आफ्टर कोलिजन पूछी जाएगी। तो हम कैसे आंसर करेंगे, बहुत आसान सा हिंट बच्चे देखे ज़रा। मैसिव बॉडी को तो मैंने बिल्कुल हल ही करके रख दिया है। मैसिव बॉडी की अगर आपसे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पूछे तो उसका शॉर्टकट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मैसिव बॉडी की जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी होगी, मैसिव बॉडी की आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसका मतलब है कि मैसिव का तो हमें सोचने की ज़रूरत को नहीं, जो गिवन होगी क्वेश्चन में वेलोसिटी मैसिव बॉडी की जो बिफोर कोलिजन होगी वही उसकी आफ्टर कोलिजन भी होगी। लेकिन इसमें लाइट बॉडी का थोड़ा सा इशू है और लाइट बॉडी का केस समझाने के लिए मैंने 2 डिफरेंट एमसीक्यूज आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, उनको जल्दी से लिख सें
ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे, सपोज करें एक मैसिव बॉडी है। देखिए मैंने कैपिटल एम वैसे लिख दिया है क्योंकि इसकी मास मुझे नहीं पता। मैसिव बॉडी सपोज करें क्वेश्चन में कि मैंने 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और एक लाइट बॉडी के साथ जाकर कोलाइड कर रही है जिसकी मास को वैसे मैंने स्मॉल एम कह दिया है, और लाइट बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट में है। एक तो ये केस है, मैसिव बॉडी लाइट के साथ जाकर कोलाइड कर रहा है और लाइट की स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में है। अब आपसे पूछा गया कि v1 प्राइम मैसिव बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बताएं और v2 प्राइम लाइट बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बताएं। इसका हल कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, मैसिव के लिए क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी रिमेन सेम, जो उसकी बिफोर कोलिजन है वो इसकी आफ्टर कोलिजन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो v1 प्राइम होगा वो तो फिर मैं v1 की इक्वल ही लिखूंगा ना, क्योंकि हमने शॉर्टकट याद किया हुआ है। तो v1 इसकी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी अगर बिफोर कोलिजन 4 मीटर पर सेकंड है तो आफ्टर कोलिजन भी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन ये याद रखना है कि अगर एक मैसिव बॉडी लाइट बॉडी के साथ जाकर कोलाइड करता है और वो लाइट बॉडी अगर किस स्टेट में हो? रेस्ट की स्टेट में हो, तो लाइट बॉडी की वेलोसिटी को हम यूँ लिखेंगे आफ्टर कोलिजन 2v1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2v1, मतलब लाइट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मैसिव बॉडी की वेलोसिटी का डबल होगी। बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने, मैसिव बॉडी की वेलोसिटी का डबल होगी। इसको ज़रा हल करते हैं। 2 × v1 कितनी है? इस क्वेश्चन में 4 है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? 8 मीटर पर सेकंड आपकी हो जाएगी। तो हिंट क्या बना कि अगर आपका मैसिव बॉडी लाइट से जाकर कोलाइड करता है तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन लाइट बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी का डबल होगी। अब इसका फिजिकली यूज़ सोचो ज़रा जल्दी से कि एक ट्रक है, वो मूव करता हुआ जा रहा है और रस्ते में एक बॉल पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। तो देखो, जब ट्रक बॉल के साथ कोलाइड करेगा तो ट्रक की वेलोसिटी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम आएगी। लेकिन बॉल की जो वेलोसिटी है, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इमेज माइंड में आ जाए इस क्वेश्चन का। तो जो लाइट बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैसिव बॉडी की वेलोसिटी के डबल से, यानी बहुत फास्ट वो चीज़ क्या करेगी? मूव करेगी। इसका अपोजिट केस देखते हैं। अब यूँ समझने कि अब लाइट बॉडी जो है वो गुस्से में आ गया, वो कहता है अब आप रेस्ट में हो, मैं हिट करता हूँ। तो इसको अब यूँ देख लें कि लेट से ये लाइट बॉडी है, इसकी मास m1 m है, वो जाकर एक मैसिव बॉडी के ऊपर हिट कर रहा है और वो मैसिव बॉडी की स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में है। तो मैंने भी आपको क्या क्वेश्चन बताया था, वो ये पूछेगा v1 प्राइम और v2 बताएं, यानी इनके आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बताएं। तो बच्चों क्या हिंट है? वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी रिमेन सेम, मैसिव बॉडी की जो बिफोर कोलिजन है वही आफ्टर कोलिजन है, यानी इसकी v2 प्राइम किसके बराबर होनी चाहिए? v2 इसकी 0 है तो कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। इसको मतलब कि मैसिव का मसला तो इस लाइन से सॉल्व हो रहा है हमेशा के लिए। अब इसका मतलब ये कि मैसिव बॉडी के साथ जब लाइट बॉडी कोलाइड कर रहा है तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो बिफोर कोलिजन है वो इसकी आफ्टर कोलिजन है। अब जो देखना है लाइट बॉडी के साथ इस केस में क्या होगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, शायद आपको बात अच्छी समझ आए। अब इमेजिन करो ट्रक खड़ा हुआ है, तो कोई ट्रक का मैसेज बोल रहा है ना समझने के लिए, आप लोगों ने उसके ऊपर बॉल हिट की है, तो क्या ट्रक उड़ना शुरू हो जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा। डेफिनेटली यही होगा कि ट्रक के ऊपर जब आप बॉल हिट करोगे और बॉल जब हिट करेगी ट्रक के ऊपर तो वहाँ से बाउंस बैक होगी, यानी बॉल वापस आ जाएगी। ट्रक अगर पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो देखिए उसकी पहले वेलोसिटी 0 थी तो बाद में भी क्या है? 0 ही है। लेकिन बॉल के बारे में आप लोगों को मैंने क्या बताया? बॉल क्या होगी? बाउंस बैक होगी। और ये जो हम केसेस पढ़ रहे हैं या हम कोलिजन का टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम इलास्टिक कोलिजन के लिए डिस्कस करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन हमारे कोर्स में जस्ट डेफिनेशन की हद तक है, उसकी फर्दर डिटेल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हम इलास्टिक कोलिजन ही ले रहे हैं। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है ट्रक और बॉल का, तो इसका मतलब ये हो कि जब बॉल बाउंस बैक होगी तो इलास्टिक कोलिजन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इस बात का अब यूँ सोचें कि जब ये वाली बॉल इस ट्रक के ऊपर जाकर हिट करेगी, जैसे इसने इसके ऊपर हिट किया तो बॉल बाउंस बैक होगी। अगर पहले वो 7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी तो अब भी किससे करेगी? 7 मीटर पर सेकंड से ही करेगी। वेलोसिटी की सिर्फ क्या चेंज होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। मैग्नीट्यूड बच्चे फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि जितने भी अभी हम केसेस डिस्कस करेंगे सारे वो किसके लिए हैं? इलास्टिक कोलिजन के लिए हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में डिटेल ही इलास्टिक कोलिजन की है। लेकिन हम इस 7 के साथ माइनस लगा देंगे। माइनस साइन ये शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या हुई है? रिवर्स हुई है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई। तो इसका फर्ला क्या बनेगा? v1 प्राइम का। तो v1 प्राइम फिर किसकी इक्वल होगी बच्चों? -v1 की इक्वल होगी ना। सादा लफ्ज़ों में
अगर इसकी 7 मीटर पर सेकंड है तो कोलिजन के बाद इसकी -7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और माइनस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस और मैंने बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसकी जब बुकलेट में से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इस कंसेप्ट पे आपकी ज़्यादा ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, एक बॉडी है, उसकी मास 5 किलोग्राम है और वो बॉडी मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरे बॉडी के साथ जाकर कोलाइड करता है M2। उस बॉडी की मास 1 किलोग्राम है और सेकंड बॉडी किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है कि V1 प्राइम किसकी इक्वल होगा, यानी जो फर्स्ट बॉडी है उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी। जल्दी से मुझे ये बताएं कि क्या ये क्वेश्चन केस 1 का है, केस 2 का है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, ये ना तो केस 1 का है। केस 1 होने के लिए क्या ज़रूरी था, मासेस सेम होती, तो मासेस एक की 5 है, एक की 1 है। केस 1 का क्वेश्चन नहीं है। केस 2 में क्या हिंट था कि मैसिव और लाइट बॉडी वर्ड यूज़ होंगे और मासेस गिवन नहीं होंगी। अब ये ना समझे कि 5 किलोग्राम से 1 किलोग्राम तो लाइट और मैसिव ये हैं। मैंने उसका लाइट और मैसिव को क्लियर भी किया था कि उसमें साथ में ये वर्ड यूज़ होंगे और मासेस गिवन नहीं होंगी। तो 5 के मुकाबले में 1 किलोग्राम जो है उसकी मास को निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो कि जो अभी हमारा क्वेश्चन है ये ना फर्स्ट केस का है ना सेकंड केस का है। इसको कैसे हल करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बच्चे ये फार्मूला जो मैंने 2 बोर्ड पे लिखे हैं याद करना पड़ेंगे। ये V1 प्राइम यानी फर्स्ट बॉडी के आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है, और V2 प्राइम जो है वो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये फार्मूला आपके एविटीज़ भी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट बॉडी के आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, सेकंड बॉडी का क्या फार्मूला है, तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब V1 प्राइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इस फार्मूले से V1 प्राइम कैलकुलेट हो सकती है। तो V1 प्राइम इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है V1 आपके पास कितनी इस क्वेश्चन में 3 इसकी जगह लिखी है M1 माइनस M2 5 माइनस 1 आप लोगों ने कर दिया, नीचे M1 प्लस M2 5 प्लस 1 हो गया। अब आगे देखें इसमें V2 लिखा हुआ है। अब V2 की वजह से V2 तो यहाँ पर 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लें, ये 4 माइनस 4 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12/6 तो 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। इस तरह बच्चे अगर आपसे सेकंड बॉडी यानी V2 प्राइम की वेलोसिटी पूछ लेता है तो वो भी हम इस फार्मूला से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये सर फार्मूला इतना बड़ा है तो हम इसको कैसे मेमोराइज रख सकेंगे, क्योंकि इसकी टर्म मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसको जल्दी से मैं आपको एक रूल बताता हूँ, अगर आपको माइंड में रह गया तो आप फार्मूला खुद से भी लिख सकते हैं। उसको ज़रा जल्दी समझिएगा। देखिए अब यूँ सोचो थोड़ी देर के लिए, फार्मूला कैसे याद रखना है उसकी टेक्निक बता रहा हूँ। V1 प्राइम का फार्मूला लिखना हो या V2 प्राइम का लिखना हो, सबके नीचे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 आप सबके नीचे लिख सें। यानी माइंड में लाएं कि आप लोगों ने V1 प्राइम का लिखना है या V2 प्राइम का, तो सबके नीचे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 आ जाएगा। अब देखते हैं V1 प्राइम का फार्मूला कि ऊपर वाली साइड कैसे लिखेंगे। अब यूँ सोचो, अगर हम V1 प्राइम की बात कर रहे हैं तो इसके 2 ओवर देन है, एक इसके ऊपर कुछ बातें लिखनी है, कुछ बातें इसके ऊपर लिखनी है। तो अब ये याद रखें कि अगर V1 प्राइम की बात हो रही हो तो इसका जो फर्स्ट वाली इसके ऊपर आप लोगों ने जो चीज़ लिखनी है उसमें आप लोगों ने फर्स्ट बॉडी को प्रेफर करना है। मैंने बताया कि अगर V1 प्राइम की बात हो रही है तो फर्स्ट ओवर के ऊपर जिस बॉडी की बात हो रही है उसी को प्रेफर करना है। उसको प्रेफर करने का मतलब क्या है कि पहले आप लोगों ने उस बॉडी की वेलोसिटी लिखनी है, फिर उसी बॉडी की मास में से सेकंड बॉडी की मास को माइनस करना है। तो 1 की अगर बात हो रही है तो 1 की स्पीड आएगी और 1 की मास में से सेकंड को माइनस करेंगे। अगर बच्चों V2 की बात हो रही है यानी V2 प्राइम की है, तो मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर होगा फर्स्ट ओवर के ऊपर उसी को प्रेफर करेंगे। प्रेफर करने का मतलब क्या है, यहाँ स्पीड लिखनी है तो उसी की स्पीड लिखेंगे और उसी की मास में से दूसरी मास को माइनस भी करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो चीज़ रॉन्ग कर देते हैं जल्दी में, उनको ये याद नहीं रहता कि M1 माइनस M2 लिखना है या M2 माइनस M1 लिखना है। तो आपको याद अब हो गया, या V1 लिखना है या V2 लिखना है, तो वो बता दिया जो यहाँ पर होगा वो इधर लिखना है, जो यहाँ पर होगा वही लिखना है, और जो इधर होगा उसी की मास में से दूसरी मास को भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उम्मीद है आप अगर इस बात को सोच रहे हैं तो आपको माइंड में स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अब रहेगी दूसरे ओवर की बात। तो देखो आप लोगों ने यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ओवर था उसके ऊपर आप लोगों ने सारी प्रेफरेंस किसको दी है, जिस बॉडी की वेलोसिटी की बात हो रही थी उसी को सारी प्रेफरेंस दी है। यहाँ पर सेकंड की बात हो रही थी उसी को सारी प्रेफरेंस दी है। अब रहेगी बात इसके सेकंड ओवर के ऊपर किसको प्रेफरेंस देंगे, तो अपोजिट बात होगी।
सेकंड ओवर के ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट बॉडी को प्रेफरेंस दी है, तो यहाँ पर अब आप देख लें आप लोगों ने सेकंड बॉडी को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ 1 था तो 1 की सारी प्रेफरेंस है, लेकिन इसका दूसरा ओवर जो बनेगा उसमें आप लोगों ने प्रेफर किसको करना है, 2 को करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने प्रेफर किसको किया था, 2 को किया था, क्योंकि यहाँ पर V2 था। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, यहाँ पर हम प्रेफर किसको करेंगे, 1 को प्रेफर करेंगे। शुक्रिया।